Hello kids, welcome back to OMT online math tutorial. As you know that we were doing exercise 4.1 of grade 7 and we have completed the exercise. If you have not gone through the exercise, I'll put the link in the description box. Kindly go through the link, and if you have any confusion, comment in the comment section box. Now moving towards the exercise 4.2. So the very first question, what the question is talking about, let us read the question. First step to separate variable and then solve the equation. Now what is variable? That is the unknown value. जो value आपको हर बार equation में क्या करेगी? Vary करती जाएगी. That is called as the variable. So हमें क्या करना है? आपको equation को अलग करना है, means numbers को अलग करना है और variable को अलग करना है. तो आप कैसे start करोगे? Your first question is x minus 1 is equals to 0. Whenever you are doing the solution, first write solution and then start. This is the very first step to solve any kind of question in mathematics. So x minus 1 is equals to 0. अब क्या हुआ? हमें पता है ये वेरिएबल है और ये क्या है आपका कांस्टेंट है. अब आप क्या करोगे? वेरिएबल को अलग करोगे, कांस्टेंट को अलग करोगे. So here I know that minus 1 is there. So अगर मेरे पास एक ही चॉकलेट थी और मैंने वही चॉकलेट खा ली तो क्या लेफ्ट आउट रहेगा? 0. So the negative of minus 1, अपोजिट क्या होगा नेगेटिव का? पॉजिटिव. So if I write x minus 1 plus 1. अब देखो मैंने क्या किया, मैंने RHS को डिस्टर्ब कर दिया, मैंने प्लस 1 ऐड कर दिया. तो इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे प्लस 1 ऐड करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि हम दोनों इक्वेशन को हमेशा बैलेंस रखते हैं. तभी मैंने कहा था RHS इज इक्वल्स टू LHS आता है. अब आपको पता है -1 + 1 दैट इज 0, कैंसिल्ड और रिडक्टेड. नाउ लेफ्ट ओवर इज व्हाट? x इज इक्वल्स टू 1. सो द फाइनल आंसर इज व्हाट? x इज इक्वल्स टू 1. यही क्वेश्चन बोल रहा था कि आपको वेरिएबल को सेपरेट करना है और फिर इक्वेशन को सॉल्व करना है. सो द फाइनल आंसर x is equals to 1. Moving to the next part, we are doing the alternate part. So B is your homework. Try to solve it by your own. Again -1 is there. x को अलग करना है तो क्या करोगे आप लोग? सिंपल -1 + 1. अब आपने इधर +1 ऐड किया है तो इक्वल्स टू के इस तरफ भी आपको ऐड करना पड़ेगा. So 5 + 1. So -1 + 1 डिडक्टेड. क्या बचा पीछे? x. So x is equals to 6 is your answer. I hope you are getting. Now moving to the next part, y minus 4 is equals to -7. See, the sign are always important. So जो भी sign है आप equation में साथ लेके चलोगे. So y minus 4. अब -4 है, आपको वेरिएबल को अलग करना है तो आप क्या करोगे? -4 की जगह उसका रिवर्स क्या अपोजिट? +4. जब आपने यहाँ पे किया है RHS में तो आपको LHS में भी करना पड़ेगा. तो -7 + 4. अब ये क्या हो गया? माइनस प्लस रिडक्टेड. y is equals to. अब now the very important task. We know the integers. How we know? Minus plus minus. The rule is minus plus minus. तो आप पहले माइनस कर दो. 7 में से 4 गया, कितना हो गया? लेफ्ट ओवर 3. अब साइन किसका लगाओगे आप? जो नंबर हमेशा बड़ा होगा. We know that 7 is greater, so the sign will be negative sign. So y is equals to -3 is the answer. Moving to the next sequence. Okay, so G part. अब G part क्या कह रहा है? y plus 4 is equals to 4. क्या करोगे? वेरिएबल को आपको अलग करना है. आपके पास ये कांस्टेंट है. So +4 है, so अपोजिट में क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ 4. So y +4 -4. जब आपने यहाँ पे -4 किया है तो इक्वल्स टू के इस तरफ भी आपको करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन क्या रहे? हमेशा आपकी बैलेंस रहे. 4 - 4. नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन? +4 - 4 रिडक्टेड. y is equals to 0. 4 - 4 is what? 0. So y is equals to 0. Now we have not done B, D, F and H part of question number 4 of exercise 4.2. So try to do it by yourself. If in case any confusion is there, comment me in the comment section box. Moving towards the next sequence. Okay, so question number 2. Again the question is talking about the same as in question number 1. Read the question. First step to separate the variable
and then solve the equation. This is the short form to write the equation. If you are writing the complete, then it is fine, and if you are writing this, then it is also fine. Now moving to the very first question, 3L is equals to 42. अब मैंने आपको बताया था 3L means what? 3 times L, 3 into L, yes or no? 3 product L. So सबका क्या मीनिंग आ रहा है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन. 3 into L is equals to 42. ये तो आपका क्वेश्चन था. अब क्वेश्चन ने क्या बोला है आपको सोल्यूशन करने के लिए, मुझे फर्स्ट स्टेप दो ताकि आपका वेरिएबल अलग हो जाए. तो वेरिएबल ये है, मुझे इसको सेपरेट करना है, तो मैं क्या करूंगी, ये 3 मल्टीप्लाई में है तो उसका अपोजिट क्या होगा, डिवीजन. तो मैं इसको क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी. अब जब मैंने यहाँ पे डिवाइड किया तो आपको यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा. अब 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, पीछे क्या बचा, L is equals to 42 divided by 3. जब आप इसको डिवाइड करोगे, सी 4 एग्जैक्टली नहीं जाता है, सो 3 1 जा 3, पीछे क्या बचा 1, 1 and 2 साथ में फ्रेंड्स, सो 3 4 जा 12. So L is equals to 14 will be your answer. I hope you are getting. Moving to the next part. सबसे पहले आप वेरिएबल को देख लो, P है यहाँ पे, P डिवाइडेड बाय 7. अब आप देख रहे होगे इस क्वेश्चन में 7 डिवीजन में है, तो इसका अपोजिट आप क्या करोगे, वेरिएबल के साथ इसको मल्टीप्लिकेशन में डाल दोगे. सो 7 into P डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 4. अब जब आपने यहाँ पे 7 किया, जो ऊपर जैसे इधर कर रहे हो RHS में, वैसे ही आपको LHS में करना है. सो 4 into 7 क्या होगा, ये तो कट हो जाएगा, वेरिएबल अकेला हो गया अलोन. So P is equals to 28 is your final answer. I hope you are getting the concept. Coming to the next, 8y is equals to 36. 8 times y. See, ये exactly same है इसका, but there are जो constants है वो आपके differ कर रहे हैं. Same procedure apply करो. 8 into y is equals to 36. So अब multiply में है, यहाँ पे आकर क्या हो जाएगा, division में. So 8 से 8 cancel. y is equals to 36 by 8. अब 36 by 8 आप हमें पता है 8 की टेबल में 36 एग्जैक्टली नहीं जाता है, तो जितना रिड्यूस हो सकता है उतना रिड्यूस कर दो. सो आई नो दैट वंस प्लेस पे यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या है 8 है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसको 2 से भी रिड्यूस कर सकती हूँ, और चाहूँ तो मैं 36 और 8 दोनों ही किसकी टेबल में आते हैं, 4 की टेबल में आते हैं, तो मैं 4 से भी कर सकती हूँ. तो स्ट्रेट अवे मैं किससे कर रही हूँ, 4 से कर रही हूँ. सो 4 9s are 36 and 4 2s are 8. अब मुझे पता है दोनों के बीच में फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा, मुझे 1 मिलेगा. अब फर्दर रिड्यूस इसे नहीं कर सकते हो आप. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सीक्वेंस. ओके, सो G पार्ट इज व्हाट, A डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 15. अब आप क्या करोगे, सी ये फ्रैक्शन फॉर्म है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर देयर इन बोथ द एंड्स. सो अब आप क्या करोगे, आपको तो वेरिएबल को अलग करना है. सो 5 यहाँ पे किसमें है, डिवीजन में, तो मुझे 5 को हटाना है, रिमूव करना है. तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में डाल दूं, बिकॉज प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई. तो अब आप लोग क्या कर रहे हो, राइट सोल्यूशन. सो 5 into 8 डिवाइडेड बाय 5. अब जब आपने यहाँ पे 5 किया है तो आपको यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा, सेम साइन, मल्टीप्लाइड बाय 5. अब यहाँ पे कुछ नहीं है, सो आई राइट इन डिनोमिनेटर 1. अब मैं क्या कर रही हूँ, 5 से 5 रिड्यूस्ड, सो A इज इक्वल्स टू. अब देखो, आपको पता होगा जब आप फ्रैक्शन रिड्यूस करते हो तो या तो आप डायगोनली कर सकते हो या फिर अप एंड डाउन कर सकते हो. बस कभी भी आप जो रिडक्शन करते हो लोवेस्ट फॉर्म में जो कन्वर्ट करते हो वो पास पास में नहीं करोगे. तो मुझे पता है 7 और 1 कुछ भी रिड्यूस नहीं होगा, बट 5 and 15 दोनों रिड्यूस हो सकते हैं, सेम नंबर से होने चाहिए रिड्यूस. सो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15. नाउ व्हाट इज दिस, 7 by 3. अब मैं 7 by 3 को अगर फर्दर कन्वर्ट करना चाहती हूँ मिक्स फ्रैक्शन में, तो मैं वो भी कर सकती हूँ. आई विल शो यू. डिवीजन करना है, 3 बाहर है 7 अंदर है, 7 एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं है, सो व्हाट आई डू, 3 2 जा 6, 7 minus 6 is what, 1. Now to write in mixed fraction, what is the form, Q R D. Your question is to
रिमाइंडर इज 1 एंड डिवाइजर इज 3 एंड जो अंदर होता है दैट इज कॉल्ड एज द डिविडेंड। नाउ h पार्ट, आई हैव इंक्लूडेड h पार्ट बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव साइन था तो मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना था आपको। अब क्या करोगे, यहाँ पे t के साथ 20 मल्टीप्लाई है, 20 टाइम्स t, तो अब हमें सिंपल सा करना है, मल्टीप्लाई में ठीक है, हम इसको डिवीजन में कर देंगे, सिंपल। दोनों तरफ आपने क्या किया, यहाँ पे डिवाइड में कर दिया। अब यहाँ पे अगर आपने डिवाइड में किया है तो उधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, -10 इज इक्वल टू 20। हमेशा चिल्ड्रन आप हमेशा एक बात याद रखो, जब भी आपको नेगेटिव साइन दे रखा है, साइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो जो भी साइन है आप जनरली साथ लेकर चलोगे, ठीक है ना। अगर आपने यहाँ पे नहीं लिया तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 10, क्वेश्चन विल बी रिवर्स्ड, योर क्वेश्चन विल बी कंप्लीटली चेंज। सो अब मैं क्या करूंगी, कमिंग बैक टू द सॉल्यूशन, 20 से 20 रिड्यूस हो गया, t इज इक्वल्स टू 0 से 0, यहाँ पे भी रिड्यूस हो गया, सो क्या बचा हमारे पास, -1/2। दिस इज योर आंसर। नाउ होमवर्क क्वेश्चन क्या है, BDF of question number 2. Moving to the next sequence. Okay, so I think you got the concept. In this video we have covered exercise 4.2, question 1 and question 2. Now try to do the practice. If in case any confusion is there, comment me in the comment section box. And you have not gone through the exercise 4.1, I'll share the link in the description box. And one more request, please subscribe my channel and share my content. Bye bye children, we'll meet in the next video.